బ్యాక్ చారిత్రక జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చింది. రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంయుక్తంగా వస్తు సేవల పన్నును ఆవిష్కరించారు. బటన్ ప్రెస్ చేసి సైరన్ మోగించి జీఎస్టీని లాంచ్ చేశారు. పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్ వేదికగా జీఎస్టీకి స్వాగతం పలికారు. ఇకపై దేశమంతా ఒకే మార్కెట్, ఒకే పన్ను ఉండబోతోంది. పార్లమెంట్లో లాంచింగ్ కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది. అయితే కాంగ్రెస్ సహా పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాత్రం ఈ కార్యక్రమానికి దూరంగా ఉన్నాయి. ताता तिरकट दिन ताता तिरकट धा धा तीन ना तिरकट दिन ता तिन तिरकट धा పన్నుల వ్యవస్థలో నూతన శకానికి నాంది పలికింది కేంద్రం. జీఎస్టీతో దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి ఊపందుకుంటుందంటున్నారు ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ. జీఎస్టీ రూపకల్పనకు 15 ఏళ్ల సమయం పట్టిందని, అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్షి రాష్ట్రపతి అన్నారు జైట్లీ. We have assembled today for an important moment in the journey of our great nation. We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation. It will be an India where the center and the states work together cooperatively and harmoniously towards the common goal of shared prosperity. It will be an India which will write a new destiny. The GST is an important achievement for the whole country. The unanimity of support for the Constitution Amendment and the consensus-based work of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics and speak in one voice for larger national interest. The quality and the maturity of the debate leading to the Constitution Amendment and in the GST Council underscores this point, that India can collectively think and act with maturity for a broader purpose. The Constitution says that India is a union of states. The union is strong if both the states and the center are strong. That is the real meaning of cooperative federalism. While enacting the GST, neither the center nor the states give up their sovereignty. They have pooled their sovereignty to make joint decisions on indirect taxation. In a large and complex federal system of multi-party democracy, with the center, 29 states, 2 union territories with legislatures, and a wide divergent interest, we have implemented a constitution amendment and brought in a large tax reform, displaying a high point of Indian politics. We have done this at a time when the world is facing slow growth, isolationism, and the lack of structural reforms. With the GST, India has showcased that these forces can be overcome through the display of inclusion, openness, and boldness. For this, all members of Parliament, the state governments, all political parties, state finance ministers, and a dedicated team of officers of the center and the state governments who contributed to this deserve to be appreciated and thanked. राष्ट्रपति जी, ये जो यात्रा थी, आप इसके सबसे प्रमुख गवाह हैं कि लगभग 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी।
एनडीए 1 सरकार ने एक समिति की रचना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर आज इस सभागार में मौजूद हैं। उन्होंने सन 2003 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी कि इस देश के अंदर एक वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जीएसटी के नाम से आरंभ किया जाए। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 तक इसको लागू करने का प्रयास होगा, और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था, तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी देश के सामने रखा था, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रचना करें। आपकी उस संविधान संशोधन के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसने बहुत योगदान लायक सुझाव दिए थे। यशवंत सिन्हा जी आज मौजूद हैं इस सभागार में, वो उसके अध्यक्ष थे, और उसका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी कि जीएसटी काउंसिल की रचना की जाए, जिसमें 1/3 वोट केंद्र का होगा, 2/3 वोट राज्यों के होंगे, लेकिन निर्णय करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। स्टैंडिंग कमेटी के उस निर्णय का यह असर था कि केंद्र और राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से इकट्ठा काम करने के लिए मजबूर किया गया, और जीएसटी काउंसिल में जो एक प्रकार से कंसेंसस बना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान स्टैंडिंग कमेटी के उस सुझाव का था। एक पैरेलल रचना राज्यों के वित्त मंत्रियों की थी, एक एम्पावर्ड कमेटी थी, और समय समय पर हर सरकार ने एक परंपरा बनाई कि किसी विरोधी पक्ष के दल की जिस राज्य की सरकार हो, उसका कोई वित्त मंत्री उस एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर असीम दास गुप्ता हमारे बीच में हैं, और बहुत वर्षों तक देश में उन्होंने कंसेंसस बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे स्वयं उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करना है कि मुझे पहली शिक्षा जीएसटी पे उनसे ही मिली थी, एक बैठक में। प्रोफेसर दास गुप्ता के बाद जम्मू कश्मीर के श्री अब्दुल रहीम राठौर, श्री सुशील मोदी, उसके बाद केरल के श्री के एम मनी, आई थिंक मिस्टर मनी इज ऑल्सो हियर, और फिर बंगाल के डॉक्टर अमित मित्रा, ये एक राज्यों के बीच में आम राय बनाते रहे। और इस पूरे इतिहास के बाद इस देश ने की राजनीति ने ऐसी एक मैच्योरिटी का एक उदाहरण पेश किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में सर्वमत से पास हुआ, जिससे जीएसटी काउंसिल की रचना हुई। उस रचना के बाद काउंसिल की पहली जिम्मेवारी थी कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए कानून बनाए। वो सभी कानून 5 केंद्र के लिए, 1 सभी राज्यों के लिए सर्वसम्मति से बने। संसद ने उसे सर्वसम्मति से पास किया, राज्यों ने एक मत से पास किया, और आज वो एक वास्तविकता के रूप में हमारे सामने आया है। जीएसटी काउंसिल 18 बार मिल चुकी है। कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और 2-2, 3-3 दिन चलती हैं, और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे, और एक मत से हर निर्णय उसमें हुआ। अभी तक 24 रेगुलेशंस बन चुके हैं। राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बंटवारा क्या रहेगा, उस पर निर्णय हो चुका है। 1211 कमोडिटीज हैं जिस पे टैक्सेशन तय करना था। बिना मतभेद के
बिना किसी डिसेंट के एक एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ और उसके पीछे भी दो सिद्धांत थे कि एक, आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे कि जितना राजस्व राज्य और केंद्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे, और जो मौजूदा टैक्सेशन ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड नो अननेसेसरी बर्डन ऑन द वीकर सेक्शंस। और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। आज की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 17 23 सेस हैं। उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक असेसी को अलग अलग टैक्सेशन अधिकारियों के साथ इंटरफेस करना पड़ता था। आज